Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our part 2 of the lecture 16. In part 1 of lecture 16 we already discussed few identities and in this lecture we are going to study few more identities. So trigonometric function of sum and difference of two angles, in which we studied 10 identities. Now this one is the 11th identity. So this is cos pi plus x is equal to, we know that sum of two angles of cos is cos pi cos x minus sin pi sin x. So we know that sin pi is 0, cos pi is minus 1, so minus cos x. So cos of pi plus x is minus cos x. We already seen this identity by cos of n pi plus x is equal to minus 1 raised to the power n cos of x. So just I am overviewing this. Sin of pi plus x is equal to sin pi cos x plus sin x cos pi. So we know that cos pi is minus 1, hence sin pi is 0, it is minus sin of x. So these are identities. Now we will discuss tan of x plus y, if where x and y are the angles. So tan of x plus y, where x, none of x and y are n pi plus pi by 2. ऐसे एंगल नहीं होने चाहिए, since tan is nothing but the sine divided by cos and cos becomes 0 at odd multiple of pi by 2. So it is 2n plus 1 actually, 2n plus 1 pi by 2. Okay, so this is 13. Now we will see the proof for this. You know that tan of x plus y is equal to sine of x plus y divided by cos of x plus y. So simply यहाँ पे odd multiple लिखो, 2n plus 1 pi by 2. It is again n pi plus pi by 2. ठीक है, इसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखो, आपको इजी कब लगेगा, क्योंकि cos x और y अगर इस फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे cos 0 बनेगा और ये tan क्या होगा, और x प्लस वाई भी इसके मल्टीपल में नहीं होना चाहिए. नन ऑफ दिस एंगल एक्स वाई और x प्लस वाई इज इन द मल्टीपल ऑफ दिस. अगर ऐसा होता है तो ये 0 बनेगा और tan डिफाइन नहीं होगा एज दिस टेंस टू इन 0. सो वी नो दैट साइन ऑफ x प्लस वाई इज साइन x cos y plus cos x sin y. Similarly, cos of x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. So divide denominator and numerator. Since cos x cos y is नॉन जीरो, हम इससे डिफरेंस एंगल ले रहे हैं, डिफरेंट एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे cos x cos y जीरो नहीं होगा, तो cos x cos y से इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो, हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y. कुछ फर्क पड़ेगा, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं फॉर एडजस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ tan x प्लस वाई. तो tan x प्लस वाई के फॉर्म में ही हमें ये फॉर्मूला बनाना है, tan x और y के फॉर्म में, ठीक है, tan x और tan y के फॉर्म में. सो सेपरेट इट, we will get this cos sin x divided by cos x is tan, and this cos y get cancelled, that is tan x plus here cos y and this cos x and cos x get cancelled, sin y divided by cos y is tan y divided by this cos x cos y get cancelled, here 1 minus
cos goes with this sin by cos, that is tan, sin by cos, that is tan x, tan y. Hence tan of x plus y is equal to this. Now for tan of x minus y, replace this y by minus y, we will get tan x as it is because x is positive angle. This tan of minus y is minus tan of y, since sine is the odd function. Tan of sine of, we know that sine of minus x is equal to minus sine of x, and cos of minus x is equal to cos x. Hence this ratio become negative. So यहाँ पे माइनस tan ऑफ y बनेगा यहाँ पे सिमिलरली 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे tan का tan y का माइनस, तो tan x tan y. So these are the two identities. 13 यहाँ पे 14 बोलो इसे. Now we'll see for the cot. What is cot x plus y? To find cot x plus y, we can use this cos of x plus y divided by sin of x plus y. Either ये दोनों का फॉर्मूला यूज करके इसी टाइप में आप रीअरेंज कर सकते हो. एंड गो विथ दिस, आप ये करोगे होमवर्क में. बट इसको प्रूव मतलब इसका इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए और एक यहाँ पे मेथड है जो कि tan के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक cot of x plus y is nothing but the 1 divided by tan of x plus y, बोल सकते हो. यस ऑब्वियस. So 1 divided by tan of x plus y, that is nothing but the 1 divided by this x plus y का फॉर्मूला यहाँ पे है tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y, and this is nothing but the 1 minus tan x tan y divided by tan x plus tan y. Now divide this, and for this also x and y are not in the multiple of this odd multiple of pi by 2. Why? Because sorry, this one sin x plus y is 0 if it is in multiple of pi. So n pi के multiple में नहीं होना चाहिए. That is x none of x comma y and x plus y are in multiple of n pi. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन अगर 0 बनेगा तो कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो इसके लिए ये एंगल नहीं होना चाहिए इसके लिए. और यहाँ पे tan जब भी आ रहा है तब ये एंगल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखो. 1 माइनस tan x tan y डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y, इस दोनों को डिवाइड करो tan x tan y से, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय tan x tan y माइनस ये tan x tan y गेट कैंसिल, और यहाँ पे बनेगा tan x गेट कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय tan y प्लस tan y गेट कैंसिल 1 डिवाइडेड बाय tan x. So it is nothing but the cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x. So similarly we can find the formula for the cot x minus y. Cot of x minus y is equal to, so this is what, minus cot x cot y minus 1, because cot of minus y is equal to minus cot of y. हमने यहाँ पे ये यूज किया, और यहाँ पे cot that is minus cot y प्लस cot x, माइनस कॉमन निकालो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे cot of x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा cot x cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस cot x. ठीक है, हमने माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बनेगा cot x माइनस y के लिए. So I hope you understand this. Now we'll see next identity, that is this one is the 15th one, 16th one. अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी 16.
तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है आई टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हो, पार्ट 1 इसका लेक्चर 16 का, उसमें 10 आइडेंटिटीज जो मैंने डिस्कस की है उसी आइडेंटिटीज का यूज करके मैं ये बाकी के आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो थोड़ा इजी जाएगा ये, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, क्यों फॉर्मूले कौन से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और पार्ट 1 में हमने प्रूफ भी दिया है, तो सारी आइडेंटिटी जो है साइन एक्स प्लस वाई से हम बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये अगर फॉर्मूले भी याद नहीं आ रही है तो आप ये आइडेंटिटी उसी जगह बना सकते हो बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स बाय वन कीपिंग वन फॉर्मूला in mind. Okay, so 16th one, sin of 2x, suppose we don't know this is equal to what। हमें तो वैसे ये फॉर्मूला रट्टा मारने की अ, आदत है, 2 sin x into cos x, तो रट्टा मत मारो। तो sin 2x is can be written in the form of sin of x plus x, लिख सकते हैं इसे, yes। so sin of x plus x, we know that sin x cos x plus cos x sin x, because sin of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y, ऐसे बनता है ये। so these two quantities are same, this is 2 times sin of x cos of x, easy है। also we can convert this in tan, like tan के फॉर्म में भी हम 2x का फॉर्मूला एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज tan 2x इज सॉरी sin 2x इज इक्वल टू दिस 2 sin x cos x है ना, डिवाइडेड बाय, हम इससे डिवाइड कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सिंस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, तो हम इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस साइड भी ये 1 से डिवाइड हो रहा है, कर सकते हैं यहाँ पे तो बोथ साइड पे। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू दिस, नाउ डिवाइड दिस बाय साइन एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बनेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर बनेगा, तो ऐसे आप देख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस गेट कैंसल्ड, दिस कॉस 1 गेस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 2 tan x डिवाइडेड बाय tan square x plus 1। So this is what sin 2x formula in tan form. Okay. Now we'll see for the cos 2x 17 1 cos of 2x। तो cos of 2x के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि cos x plus x हम लिख सकते हैं इसे, and this will be cos of x plus sin of x sin of x, that is cos x plus sorry minus sin x sin x, that is cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जस्ट रिप्लेस दिस साइन स्क्वायर x, ये भी फॉर्मूला बन सकता है cos ऑफ 2x। अगर हमें आइडेंटिटीज में ऐसे इसकी जरूरत पड़े तो ये भी यूज कर सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ऑल्सो cos 2x इज इक्वल टू, if we replace this sin x by 1 minus cos square x, since we know that sin square x plus cos square x is equal to 1 होता है, तो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स को इधर भेजो, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर रखोगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज नथिंग बट द cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज नथिंग बट द 2 cos square x minus 1। So this is also one of the formula for cos 2x। cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1। और भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो, cos square x की वैल्यू अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा, cos 2x is equal to 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, so this is equal to 1 minus 2 times sin square x, is it? So cos 2x is equal to this also, same
tan के फॉर्म में भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सपोज दिस cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. Divide this quantity by sin square x plus cos square x. ठीक है, sin square x plus cos square x से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा यहाँ पे. अब फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे, cos square x से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये cos square x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस tan square x यहाँ पे बनेगा डिवाइडेड बाय tan square x प्लस 1, दैट इज 1 प्लस tan square x ऐसे लिख सकते हो. सो 1 माइनस tan square x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x, दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी फॉर द cos 2x. तो ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज आप रीअरेंज करके, टर्म्स रीअरेंज करके बना सकते हो. आपको ये अगर आते भी नहीं है तो आप ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो. दिस इज अरिथमेटिक इज सो इजी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स 18th आइडेंटिटी. सो दिस इज साइन 3x के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन 2x प्लस x ऐसे एंगल बना सकते हैं. दिस इज 18th आइडेंटिटी. ये आप करोगे, होमवर्क के लिए है ये, आप करोगे. cos 3x का भी बनाओगे, tan 3x का भी बनाओगे. ठीक है, cos ऑफ 2x प्लस x, tan ऑफ 3x के लिए भी ये बनाओगे. मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ कि 2x प्लस x के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और सॉल्व करो. cot के लिए भी बनाओगे, cot 3x इज इक्वल टू cot ऑफ 2x प्लस x. होमवर्क. और जल्द ही हमारी जो एक्सरसाइज की सीरीज है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो एक्सरसाइज के जितने सारे लेक्चर होंगे इसके लिए मैं और एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे ये नए वीडियो अपलोड होंगे. तो एक्सरसाइज देखने के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करो. सो दिस इज व्हाट 18th आप ये सॉल्व कर सकते हो. और इससे हम ये भी बना सकते हैं cos x प्लस cos y के लिए भी. ठीक है, ये जो बाकी बची हुई आइडेंटिटीज है ये हम अगले लेक्चर में देख सकते हैं. So thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more updates. Thank you.